میرا تعلق عثمانیہ یونیورسٹی سے is so friendly. آج کی اس محفل میں میرے محسن پروفیسر محمد عابد حسین صاحب جنہوں نے پرشین ڈپارٹمنٹ کو ایک رونق دی ہے اور ان کی کشش ہے کہ ان کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں. اب محترم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پرشین پروفیسر سعادت حسین صاحب اور میرے دیرینہ دوست پروفیسر اعجاز ارشد صاحب، کن کن کے نام لوں؟ یہاں پر ہمارے سمد صاحب بیٹھے ہیں. ڈرتا یہ ہوں کہ بہت سے عظیم لوگوں کے نام چھوٹ جائیں. آج ہم جس ٹاپک اور عنوان پہ بات کر رہے ہیں یہ ہمارا بر صغیر، یہ ہمارا انڈیا جتنا بھی غرور کرے تاج محل پر اتنا اس سے زیادہ غرور اس کو غالب پر کرنا چاہیے، کیونکہ غالب وہ ہے غالب کے ہمارے پاس اس وقت پرنٹڈ 16,000 شعر ہیں، لیکن اس میں سے اردو کے صرف 2,600 شعر، باقی سب فارسی کے شعر. غالب نے کہا تھا فارسی میں، مشن شوکت عرفی کے بو شیرازی، تم عرفی شیرازی کی عزت اس وجہ سے مت کرو کہ اس کا تعلق ایران کے شیراز سے تھا. مشو اسیر جلالی کے بود خانساری، تم جلالی کے اسیر اس وجہ سے مت ہو جاؤ کہ اس کا تعلق خانسار سے تھا. بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ. غالب کہہ رہا ہے رواں فروز برین دو شاہ زناری، اگرچہ کہ میں نے زنار اپنے اس پر ڈالا ہے، اپنے چست پہ ڈالا ہے، اگرچہ کہ دھاگا میرے چست پر ہے، لیکن میرے بازوؤں سے دیکھو کیا ویژنری گفتگو کر رہا ہوں، کیا تجلیاتی گفتگو کر رہا ہوں. میں تمہارے کو یعنی بالکل صحیح کہا غالب. آج غالب نے کہا تھا فارسی میں اندلی پہ گلشن ناآفریدہ ہوں، میں بلبل ہوں اس باغ کا جو ابھی نہیں بنایا گیا ہے. یعنی غالب کے ابھی 1200 شعر ایسے ہیں تقریباً، میں حساب کر رہا تھا، جس کے بارے میں آپ میننگز تو دے سکتے ہیں بٹ یو آر ناٹ ریئلی شیور کہ غالب کیا کہہ رہا. یعنی ابھی میرا غالب کو صدیاں لگے گی سوچنے کے لیے. تو یہ غالب کا جو مسئلہ ہے کہ غالب کے پاس جو اہمیت ہے اس کی چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب ہر چیز کو اپنے انداز بیان سے الگ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور تو وہ شاعری ہو، وہ ان کے خطوط ہوں، لیٹرز ہوں، وہ ان کے گفتگو ہو، ہر چیز میں ایک انداز بیان اور ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، دہلی میں نظام الدین بستی میں دفن ہوئے، اور غالب نے خود کہا ہے کہ یہ حالی نے نہیں کہا کہ غالب حیوان ظریف تھے. یہ ہم لوگوں نے غلط لکھا، پوری کتابوں میں ملتا ہے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا. نہیں، غالب کہتے ہیں شاعرم منشیم ظریف و شریف، میں شاعر ہوں، میں منشی ہوں، ایسی اسکرپٹ لکھتا ہوں، اور میں ظریف ہوں اور شریف ہوں، اعلیٰ منصب. یہ اضافات چندرا مینم، یہ کچھ اضافات ہیں میرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے ساتھ نہ انصاف نہیں ہوا. غالب کا دل غم سے کیوں نہ پر ہو. 7 بچے غالب کے ہوئے، کوئی بچہ بھی زندہ نہیں رہا. سب سے بڑا ایک بچہ 15 مہینے کا ہو کر مرا. تو جس باپ کے 7 بچے خاک میں مل گئے ہوں، اس باپ سے درد دنیا بہت آسانی سے ہم گزر رہے ہیں. غالب کہ میں نے آمدنی دیکھی ہے. اس زمانے میں ہمارے پاس رجواڑے بڑے تھے. ہمارا میر عثمان علی خان نظام 1938 میں he is the 40th richest person in the world. اور غالب کا وظیفہ میکسیمم 168 روپیز، 168 روپے. اور رامپور کے نواب
आप को 49 बार लिखता है तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन 50,000 100 रुपए के स्कॉलरशिप। इसीलिए हमारे गुलजार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि काश के मैं गालिब के कर्ज को चुकाने की अहलियत रखूं। हमारे लोगों ने कदर नहीं की। मैं कल बता रहा था कि स्पेंसर का एक लेटर मैंने इंडिया ऑफिस ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखा। वो लिखता है 1861 में 6 लाइन का लेटर है कि ये लोग ऐसी कौम है कि इनको अपने हीरोज के बारे में कुछ नहीं मालूम। आज दिल्ली की रोड पर फुटपाथ पर सोने से लिखी हुई किताबें 1 और 2 रुपए में बिक रही हैं। मैं हिज हाइनेस, मैं क्वीन से ये कहता हूं कि मुझे 2000 से 2500 रुपए भेजे जाएं ताकि मैं ये किताबों को खरीद कर इंग्लैंड रवाना कर सकूं। और आपको मालूम है स्पेंसर इज द ओनली पर्सन, स्पेंसर वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा इंडिया से बेहतरीन किताबें जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन को भेजी। ये है हमारी गालिब के साथ। तो कहने का मतलब ये है, गालिब ये कहते हैं कि आज हम क्यों पटना यूनिवर्सिटी में इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खुद गालिब ने कहा था शोहरत शेरम बगीती बादेबम खाफशुदन, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत मेरे मरने के बाद हुई। मैं असखत खरीदारी को हम खामशुद, जब शराब कोनी हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी ये लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, अभी मेरा ये मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया, मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि हमको टैगोर और गालिब की चेयर्स को दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में रखना चाहिए। इस वजह से कि जो काम राल्फ रसल ने किया है, जो काम आप जानते हैं कि दूसरे फ्रिडचिक ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क की किया है, देखिए क्या काम हो रहा है। गालिब ने कहा मेरे पास बहुत कुछ वक्त कम है। गालिब ने कहा था कि तुम लोग सिर्फ बाहर के फारसी के शायरों की तारीफ कर रहे हो, क्योंकि वक्त कम है। मैं वो फारसी के शेर नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाल ही जो उनके शागिर्द थे, क्योंकि एक शेर कहा था कि मैं भी एक छोटा सा शायर हूं, ये बड़े बड़े शायरों के नाम देकर तुम मुझे भी शुमार करो। तो जब 1869 में जब गालिब मर गए तो उनके शागिर्द खाली ने एक 100 शेर का मर्सिया लिखा। उसमें उस एलिजी में 3 शेर पर पढ़ता हूं। ये वो शायर हैं जो फारसी के हैं, जिनकी तारीफ की गई थी। खुशियो साहिबो असीरो कलीम, लोग जो चाहें उनको ठहराएं, हमने सबका कलाम देखा है अदब मुना अब खुलवाएं, गालिबे नुक्तदा से क्या निस्बत, खाक को आसमां से क्या निस्बत। हमने अपने गालिब को समझने की कोशिश नहीं की। आप देख रहे हैं कि गालिब ने, हमने बाहर से यानी अरबी से, फारसी से खता लिया, रुबाई ली, गजल ली, मसनवी ली, फॉर्म्स लिए उनके से, उनकी हैयतें ली, फॉर्म्स ली, लेकिन मानी तो अपनी जमीन से भरे। इसी को गालिब ने कहा, गंजीने मानी का तिलिस्म इसको समझिए, हर हर्फ के गालिब तेरे दीवान में आवे। तो मानी आफरीनी हमने यहां से की है, जड़ें गालिब की शायरी की यहां से है। बस सोमनाथ ख्यालम दराई कामिनी, मानी धर्म की गुफ्तगू नहीं है, मानी ये है कि मैंने अपने अशार में यहाँ की खुशबू को भरा है, यहाँ की फिक्र को भरा है, यहाँ की, क्योंकि आप जानते हैं कि 7th सेंचुरी में सबसे बड़ा काम जो फिलॉसफी ऑफ डेथ एंड लाइफ यानी हयात और ममात पर जो सबसे बड़ा शंकराचार्य था, वो यहीं से था, जिसका जिक्र आपने देखा कि अभी हमारे पास गोपीचंद नारायण की किताब आई गालिब, और उन्होंने आपके जो है शून्यता पर जो गुफ्तगू की है, ही इज द फर्स्ट पोएट टू डिस्क्राइब, किसी दूसरे शायर ने किया और उस पर काम नहीं हुआ। तो गालिब फर्स्ट प्रोग्रेसिव शायर है उर्दू का,
बल्कि यहाँ पर गालिब और उर्फी शिराजी जो यहाँ पर था जहांगीर के जमाने में, उसने कहा था कि ये हाफिज जो है ये हाफिज काबा सुखन है, यानी हर एक शायर को जरूरी है कि उर्फी का तवाफ किया जाए। उसी तरीके से गालिब हमारा काबा सुखन है और हमारे लिए जरूरी है कि उसकी गुफ्तगू की जाए। तो गालिब रोशन फिक्र थे। एक वाक़या सुना रहा हूं। सर सैयद अहमद, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो सर सैयद ने एडिट की एक किताब आईन अकबरी। सर सैयद गालिब से 20 साल छोटे थे। ये भी अजीब चीज है, ये 5 बड़े लोग 20 साल का फर्क रखते हैं। यानी गालिब से 20 साल छोटे सर सैयद से 20 साल छोटे हाली से 20 साल छोटे शिबली, और शिबली से 20 साल छोटे अब्बास। यह सिलसिला, ये पूरा आपके यानी सुनहरी जो जंजीर है 20 साल के फर्क से है। तो उन्होंने एडिट किया अकबर और कहा कि चचा गालिब कहते थे, कहा चचा गालिब इस किताब पे जरा प्रीफेस लिख दीजिए ताकि इसकी इज्जत बढ़ जाए। गालिब ने 33 शेर की एक मसनवी लिखी। उस मसनवी में लिखा, सर सैयद क्या बेकार काम कर रहा, तू जैसा इंटेलिजेंट शख्स मानी पड़ रहा। देख इंग्लैंड को, वहां की रातें दिन की तरह रोशन हो चुकी, वहां उनके जहाजों को देख जो पानी के सीने पर तैर रहे हैं। उस जमाने में टेलीग्राफ शुरू हो चुका था। देखो उनके लफ्ज उड़ उड़ कर हवा के जरिए आ रहे हैं मुल्कों में, तू क्या बेकार काम कर रहा। बड़े तुल लफ्ज में कहते हैं कि मुर्दा परवर, यानी कहते हैं मुर्दा परवर्तन मुबारक कारनीस। ये मुर्दा परस्ती जो है, ये पुरानी परस्ती अच्छा काम नहीं है। खुद बेगू, तू खुद बता, कानीस जुज गुफ्तार नीस, कि ये तेरे लिए जेब नहीं था। सर सैयद को बहुत बुरा लगा। सर सैयद ने इनकी इस मसनवी को शामिल नहीं किया अपनी आईन में। लेकिन सुनिए, जो पर्सनालिटी होती है ना डायनामाइट टाइप की, उसके वास्ते उसको जलाने के लिए आतिश नमरूद की जरूरत नहीं होती, उसको एक चिंगारी की जरूरत होती है। इसके बाद से कभी सर सैयद ने कोई ऐसी किताब एडिट नहीं की। इसके बाद से अगर बनाया तो तहजीबुल अखलाक पर्चा जाहिर किया। इसके बाद से अगर सर सैयद ने किया तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसके बाद से सर सैयद ने अगर किया तो मोहम्मदन एजुकेशनल स्कूल बनाया। इसके बाद से सर सैयद ने अगर किया तो आप देखते हैं कि कॉलेज खोला। और इस तरीके से सर सैयद आपके अलीगढ़ में तमाम हुए। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े आदमी की छोटी बात भी बड़ी होती। ये है गालिब, ये है हमारा गालिब जो जिंदगी बनाता है, जो रोशन फिक्र है, जो प्रोग्रेसिव है। गालिब इंसानी जज्बात के माने। अगर आप गालिब की ये 14,000 शेर को देखेंगे तो एक सेंटर निकलेगा, वो है द प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए आज हम 21वीं सदी में हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं, हम चांद पे तो जमाने पहले जा चुके हैं। हम इकोनॉमी लिहाज से नेवर वी वर इन दिस पोजीशन, यानी आज हर सेकंड इतना इंटरनेट पर नॉलेज है, लेकिन स्पिरिचुअली तरीके से हम गिर चुके हैं। देयर इज नो डाउट इंसान का एहतराम नहीं कर रहा, माई वे इज द आई वे कर रहा। और यही है गालिब जिस चीज का सेंटर देता है, वो कहता है द ह्यूमन राइट्स, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन। एक शेर जो इकबाल ने कहा है कि आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अस मुकाम आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी का एहतराम करे। ये जो सर्कल है फॉरेस्ट का कि छोटा बड़े को मार के खा जाए, बड़ा उसको बड़े से मार के खा जाए, उसी का फर्क है कि इंसान नहीं करता। चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले, दैट इज द स्पिरिट। तो गालिब के पास आप देख रहे हैं कि गमे रोजगार जो है, गालिब के पास जो मसाइल हैं, उसका गालिब का शहीद शागिर्द या मीर मेहदी मजरू है या हरगोपाल तफ्ता गालिब ने नाम दिया है।
हर गोपाल सिकंदराबाद बुलंदशहर के जो थे उनका तखल्लुस था रामी है कोई। मैं प्रोफेसर साहब आप फारसी के हैं, मैं ये बता रहा हूं तख्ता ने इतने बड़े बड़े 4 फारसी के दीवान शेर कहे, क्यों हम उससे वाकिफ नहीं? तख्ता ने, हरगोपाल तख्ता ने पूरी जिंदगी फारसी 4 बड़े एक ही शेर कहा है गालिब के लिए, वो उर्दू में जो हमारे पास मौजूद है कि ये कौन मर गया मेरा उस्ताद, कि हर चीज तबाह हो गई, उसके माने निकलते हैं ये इस तरह तबाह हुआ, ये इस तरह तबाह हुआ, एक शेर कहा। लेकिन हरगोपाल तख्ता सिकंदराबादी, जिनके बहन के बच्चे बाल मुकन बेसब्र हैं, अभी साहित्या ने मुझसे कहा कि इस पे मोनोग्राफ बनाए, तो मैंने 150 सफ़े का मोनोग्राफ तैयार किया। लेकिन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ये जो बाल मुकन इनके भांजे थे, 6000 शेर का जो उनके हाथ का लिखा हुआ दीवान है, वो ओनली 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज इन माय लाइब्रेरी। तो मैंने कहा ये मेरी लाइब्रेरी का और ये मेरा फर्ज होता है कि बाल मुकन का पूरा दीवान को तरतीब दे के मैं पेश करूं। तो इस साल के इंशाल्लाह आखिर तक मैं बाल मुकन बेसब्र का देखूंगा। आप दीवान देखेंगे तो देखिए अपने उस्ताद के बारे में क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो इसी वजह से तबकात से ताल्लुक नहीं रखते। गालिब का जो कमाल है वो ये है कि इंसानियत की गुफ्तगू करता है, गालिब का जो कमाल है। तो ये तो बड़े फनकारों की चीजें होती हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके जो अशार हैं, जैसे वो कहते हैं, आसान शेर भी कहते, गालिब बहुत मुश्किल है। ये बता दूं मैं आपको, गालिब मुश्किल शोरा में है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। ये तो उनकी सहल तरीन आपकी गजलें हैं कि उनको, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। देखने में ये बहुत सादा शेर है, लेकिन पूरा शेर महवर कर रहा है वफा के सामने, और वफा के किस मानी से पहले मिसरे में इस्तेफादा कर रहा है, और वफा के किस मिसरे से आखिरी मिसरे में इस्तेफादा कर रहा है, वही उसकी जान है। तो गालिब ने जिस तरीके से, अब आप देखिए इश्किया नज़्म है उनकी, कि आपको मालूम है कि क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा आसान चीजें पेश करूँ। कि वो जो गजल है, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे खता से बस चरागा किए हुए। यार को मैंने मुद्दत से मेहमान नहीं किया, और जोशे खता यानी भरते हुए छलकते हुए शराब के प्यालों से मैंने महफिल को रोशन नहीं किया। ये मानिए ना, इसमें हवस, आरजू, ताके, निगाह, ये 4 अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, यही कमाल। सुनिए, कहते हैं मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और यानी गालिब अपने मिसरों में वही लफ्ज रखता है जो उस मानी के 100% बताएं। यानी महबूब ये चाहता है कि उसका माशूक आए छत के ऊपर, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, ये उसकी हवस है। कैसे? जुल्फे सियाह रुख पे परेशान किए, यानी वो माशूक ऐसे आए कि अपने चमकते हुए चेहरे पर काले अपनी बालें, अपने बाल, तो ये हवस है। एक जगह कहते हैं चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरज़ू, सुरमे से तेज दुश्मने मुश्का किए हुए। यानी ये जो आई लैशेस हैं, इसको सुरमे से इतना बढ़ा दें, इतना तेज कर दें कि वो खंजर बन जाए आशिक के लिए और उसके सीने में आपके उतर जाए। तो यहाँ पे कहते हैं आरजू, चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज दुश्मने मुश्का किए हुए, एक नौबहार नास को ताके है फिर निगाह। आप देख रहे हैं कि एक एक लफ्ज का इस्तेमाल, ताके को यहाँ, अरे भाई ये तो लड़के को ताक रहा है, अरे इस शख्स की हवस तो देखिए, अरे भाई ये मेरी आरज़ू है।
हर लफ्ज के मानी एक कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। और गालिब इज दैट पोएट, गालिब वो शायर है जिसको मालूम है कि देखिए एक नौबहार नास को ताके है फिर निगाह, चेहरा फुरूग मैसे गुलिस्तान किए हुए। तो ये जो चेहरा है ये शराब पीने से जो माशूक का चेहरा दहक चुका है, जो किरमिज और लाल हो चुका है, जो उसकी आंखों में डोरे पड़ चुके हैं, उसके लिए यहाँ पर ताके है फिर निगाह का जुमला किया है। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तही ये तूफान किए हुए। गालिब मुश्किल है, गालिब की जबान मुश्किल है, गालिब के लफ्ज का इस्तेमाल है। क्या हम शेक्सपियर को छोड़ दें? इसी वजह से इकबाल ने कहा था कि वेलवर में तेरा जो है सेकंड बड़ाई जो होती है, गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और हम ये करते हैं कि अपने जमाने के लोग जिस अशार को समझें उसी को देकर आपके खुश करना चाहते हैं। गालिब उसकी परवाह नहीं करता। गालिब ने कह दिया मानी ना सही मेरे पास, तुम अगर समझ ना सको आइंदा आने वाली नस्लें समझेगी। तो गालिब को मरकर 150 साल हो रहे हैं। 150 साल के बाद आज हम पटना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए गालिब के अशार की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गालिब इस जमाने में भी जिंदा है और गालिब को पढ़ा जा रहा है। और गालिब ही एक ऐसी चीज है जो हमको पूरी आइंदा कितनी सदियों तक बाहर रख सकता है। गालिब वो शख्स है जिसने महशर ख्याल कहा है दिमाग। किसी और फारसी और उर्दू शायर में मैंने नहीं देखा कि जिसकी तर्जुमानी, जिसका ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है। गालिब इंसानी जहन की वुसअत, तहदारी, बूकलमी और अजमत का एतराफ कर रहे हैं। तो गालिब आप देख रहे हैं, हमारे पास वक्त कम है इस वजह से कि बीसी साहब को भी जाना है। समझते हैं कि आपका कार्यक्रम चले, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चले भी जाए तो यू आर मच मोर इम्पोर्टेंट। मच इम्पोर्टेंट, एवरीवन इज एंजॉयिंग। चाहेंगे कि चलेगा। आगे चलेंगे दम लेकर, तो थोड़ा सा आप बोल दीजिए तो फिर मैं एक लेटर पढ़ता हूँ, उसके बाद से हमारे वीसी साहब और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये ऐसा अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ कि जो क्रिएशन होता है उसके लिए फिक्र की जरूरत नहीं। सरी पाए जानते हैं ना आपके जो है, जिसमें एक फूड है ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, जिसको नहारी हैदराबाद में कहते हैं, जिसमें ये गोट के जो है बकरे का सर और उसके पाए होते हैं, शोरबा होता है। अब उसको देखिए, एक लेटर पे खत्म कर रहा हूँ, इसको कहते हैं गालिब। तो वो किसी ने सुबहाना रोटी के साथ भेज दिया। तो एक शख्स उनका शागिर्द था, शागिर्द नहीं थे बल्कि उनके जो है आपके मुसाहिब थे, उनका नाम था अबुल कासिम।